one of the best high court in India on 10th. One of the best high court in India on 10th. For having a robust judiciary infrastructure should also good. उसमें पब्लिक को भी मैं यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा तकलीफ तो होंगे क्योंकि लेकिन एक एज ए प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि व्हेनेवर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मूव करता है, हमको लगता है कि अभी सेपरेट हाई कोर्ट होने में थोड़ा और 4-5 और साल लगेंगे. ऑन 10th वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट इट. हमारा अरुणाचल स्पोर्ट्स में गेम्स स्पोर्ट्स जो भी हो बहुत तेज़ी रफ्तार से आगे जा रहे हैं. आपको मैं बताऊं, आपका माध्यम से इंडिया टुडे के माध्यम से मैं यही बताऊं कि अरुणाचल अभी नॉर्थ ईस्ट में इज सेकेंड इन नंबर. मणिपुर से अभी हम लोग और सियांग मल्टीपर्पज़ डैम को लेके मैं यही कहूँगा कि उस एरिया का पीपल ऑफ दैट एरिया को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको होने देना चाहिए. कारण ये है कि आपको देखिए उसमें आपको अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 350 करोड़ आपको सैंक्शन कर रहा है. आपको उसमें आपको रिहैब So we are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and we came here to the office of Law Minister of Arunachal Pradesh, Advocate Kento Jini, and Arunachal Pradesh is gearing up for the much awaited inauguration of High Court here in Nahalagan, and Chief Justice of India and along with other dignitaries, they are coming here on 10th of August at this much awaited event. Kiren Rijiju, Union Minister, also is coming. We'll interact with the Law Minister of Arunachal Pradesh, who also holds the portfolio of Sports and Youth Affairs, and Sajata also. This inauguration, how important is this? Thank you, Yuvraj. We are going to inaugurate Guwahati High Court Itanagar Permanent Bench on 10th, wherein our Chief Justice of India, Gawai Sir, Justice Gawai and 5 judges from Supreme Court are coming. Along with them, Law Minister Arjun Megwal ji is also coming. Then our own MP Minister Minorities and Parliamentary Affairs Kiren Rijiju sir is also coming along with them on 9th. And on 10th we are going to inaugurate it. Guwahati High Court Chief Justice Ashutosh Kumar ji is also coming along with 20 High Court judges. Some of them has come advanced yesterday. We are gearing up to inaugurate most beautiful and one of the best High Court in India on 10th. And for which I have already told you that Chief Justice of India is going to inaugurate it. Sir, how much is the fund required, like for this High Court? How much money the government has spent for this? Exactly, I could not recollect the amount I spent for construction of the building, but we have spent a lot in terms of crores. And I must say that this High Court is the one of the best High Court in India. Just imagine for constructing a best High Court in India, how much amount we have spent. Sure. For that, our Chief Minister is giving much priority on this, and he is taking stock of every activities, and he is personally monitoring the inauguration. And he is of the view that since the judicial system in the country is very important, and we should have
robust judiciary system in India as well in the state. For that, for having a robust judiciary infrastructure should also good. For that and for inauguration also, we are going to have a grand event, and on 9th, where Chief Minister Sir Pema Kanduji is throwing a dinner in honor of Chief Justice of India's visit to Arunachal Pradesh, which is being accompanied by the Law Minister, Union Law Minister, and the Union Parliamentary Minister, our own Minister Kiran Rijiju sir, and we're expecting a good thing for them. एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग अरुणाचल को मिलेगी, इनोग्रेट होगी। हमारे साथ केंटो जिनी जो मिनिस्टर हैं लोग के, सर काफ़ी तक आप क्या करेंगे कि नाहरलगुन के लोग ऑलरेडी इतने साल से हाईवे के लिए परेशान हैं, हाईवे की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, अभी ये जगह की जगह रेस्ट्रिक्शंस हैं लोगों को, किस प्रकार आप रिग्रेट करते हैं ये? मैं तो यही कहूँगा पब्लिक को भी इसे 1-2 दिन के लिए तकलीफ तो ज़रूर होंगे, क्योंकि मोस्ट हाईली फ्लेस्ड protocol officers like the Chief Justice of India is coming to Itanagar and for inauguration of our High Court. तो उसमें पब्लिक को भी मैं यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा तकलीफ तो होंगे, क्योंकि लेकिन एक एज ए प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मूव करता है तो उसका तो जेट कैटेगरी फ्लाइट्स होते हैं, तो चीफ जस्टिस लोगों का भी ऐसे प्रोटोकॉल है। तो हम तो अरुणाचल में आके कुछ घटना घटेंगे, कुछ होंगे तो हमारा ही अपनी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं पब्लिक को भी यही कहूँगा, तकलीफ तो होंगे लेकिन सिर्फ 1-2 दिन के लिए चलिए, और ताकि हमारा जो गेस्ट है चीफ जस्टिस एंड लॉ मिनिस्टर एंड ऑल जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो भी हो एकदम सिक्योर के साथ हम वापस जाए और विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, विदाउट एनी तकलीफ, और हमारा स्टेट में एज ए गेस्ट के रूप में बैठे 2 दिन का ही है, और उसमें आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं once again I appeal all the people of Itanagar and Naharlagun to cope up and bear with us with this problem. सर लोग अपनी हाई कोर्ट सेपरेट चाहते हैं, जैसे कि अलग अलग मेघालय को मिली, तो यहाँ अरुणाचल में अब इतनी बिल्डिंग सुंदर बन चुकी है, हाई कोर्ट का ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बन रहा है, सारे चैम्बर्स बन चुके हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि अरुणाचल को सेपरेट एक कोर्ट, गुवाहाटी परमानेंट बेंच ना होके? देखिए इन गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट नॉर्थ ईस्ट का हुआ करता था, एक सब स्टेट को जोड़ के रखता था। अभी कोई स्टेट सेपरेट हुआ है, लेकिन हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है, जो नेसेंट स्टेज में थोड़ा अभी एज ए जो कोर्ट जो हमने इस्टेब्लिश किया है हाल ही में किया है, इसमें 2000 में, अभी मेरा यहाँ में अगर सेपरेट करते हैं तो हमारा हाई कोर्ट जजेस बनने वाला थोड़ा मेच्योर्ड वाला अभी नहीं हुआ सब, और लॉयर सर थोड़ा एजेड होना पड़ेगा जज होने के लिए भी, तो सेपरेट हाई कोर्ट होने से हमारा अरुणाचल से ही अपॉइंट करेंगे और अरुणाचल से ही रूल करेंगे हम। तो लेकिन अभी हमको लगता है कि अभी सेपरेट हाई कोर्ट होने में थोड़ा और 4-5 और साल लगेंगे, और जब लग जाएंगे तो हम हाई कोर्ट सेपरेट हाई कोर्ट कर सकता है। और मैंने हाई कोर्ट कोई हाई कोर्ट लॉयर से भी जिक्र किया है, देयर मिक्स फीलिंग है सबका, कोई बोलता है सेपरेट हाई कोर्ट होना है, कोई बोलता है अभी हाई कोर्ट सेपरेट नहीं लाने से ठीक है। तो गवर्नमेंट तो वही है कि जब चाहे तो हम ला सकते हैं, लेकिन अभी मेरा व्यू में भी एज ए लॉ मिनिस्टर अभी थोड़ा और कुछ दिन वेट करने से ठीक रहेगा, हमको लगता है। वैसे आपके आलो में एक यूथ की मौत हो गई योंगो नदी में, आप कितना दुख जताते हैं? मैं तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम सैड, और फैमिली वालों को भी मैं यही दुआ करेंगे कि उसका इस तकलीफ का दिन में उसको स्ट्रेंथ है गॉड, और जो बिरिफ्ड को भी मैं यही कहूँगा कि लिव इन फिश इन हेवन। तो वो एक्चुअली वो मानसून रिलेटेड इशू नहीं है, ये जो है ये जो हमारा अपना ही कम्युनिटी का है कि वो फैमिली पाया विलेज से है, तो वो फिशिंग करने निकला था, लेकिन पता नहीं कैसे गिर गया, गिर के उसका व्हीलफुल में फंस गया उसका
the current turbulent, आप तो यू नो सियोम रिवर इज़ वेरी ट्रबुलेंट रिवर, तो उसमें व्हीलफुल में बसने का वजह से वो डूब के मरा है, तो उसमें मानसून से कोई ये रिलेटेड। आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ धरना किया था, आपने देखा होगा। तो स्पोर्ट्स को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिलते हैं, अरुणाचल आगे बढ़ा, लेकिन जो स्टेडियम्स का हाल है, आपके आलों में ही आप लोग सरेंडर करवाया जो कॉन्ट्रैक्टर को, ये किस प्रकार सर ये स्टेडियम्स बनेंगे? तीनों, तेजू हो, यूपिया हो, और भी बहुत कुछ है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। लेकिन उसके बारे में बताऊं कि आलो, यूपिया, आलो, तेजू एंड सिम्पू, तो उसको हम हाल ही में हम डिस्कस कर लिया, उसको रिक्वेस्ट किया है कि कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी को, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को भी, कंपनी को हम रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग नहीं सकेगा तो छोड़ दीजिए, और हम लोग वी डेट दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड our request, and we are going to award it to some good companies so that very soon the stadium can come up. तो आलो हो भी जल्दी हो जाएंगे, सिंपू भी हो जाएंगे और तेजू भी हो जाएंगे, मैं ये बिलीव करता हूँ। और भी सर इवेंट्स आने वाली है, अरुणाचल में भी एक स्पोर्ट्स की काफ़ी बड़ी बड़ी इवेंट्स आ रही हैं, आप क्या कहेंगे यूथ्स को कि आपकी तरफ से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को सपोर्ट मिलेगा? मैं तो देखिए, आप एज ए यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि हमारा अरुणाचल स्पोर्ट्स में, गेम्स, स्पोर्ट्स जो भी हो, बहुत तेज़ी रफ्तार से आगे जा रहे हैं। आपको मैं बताऊँ, आपका माध्यम से, इंडिया टुडे के माध्यम से मैं यही बताऊँ कि अरुणाचल अभी नॉर्थ ईस्ट में इज ए सेकेंड इन नंबर। मणिपुर से अभी हम लोग नेक्स्ट है, मणिपुर नंबर 1 है नॉर्थ ईस्ट में, हमारा अरुणाचल सेकेंड में। हम ये बिलीव करते हैं कि कुछ साल बाद हम मणिपुर को भी छोड़ के आगे निकल जाएंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर के को बोल के मैं कहता हूँ कि आपको बताऊँ कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस और युवा नेता है, यंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर, वो यूथ को कैसे एंगेज करना है, यूथ को कैसे आगे बढ़ाना है, उसी को बहुत, उसके बारे में बहुत सोचते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को कैसे प्रमोट करें स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, स्किलिंग में। हम ये बिलीव करते हैं कि स्टेट को आगे ले जाने के लिए यूथ रोबस्ट रहना पड़ेगा। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट करने से नहीं होगा, हम यूथ को भी डेवलप कराना पड़ेगा, ताकि हम दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट इंडिया, और एज ए होल हम नेशन के लिए यूथ अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो देश स्ट्रॉन्ग रहेगा और स्टेट स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो कीपिंग इन व्यू ऑल दिस थिंग्स, हम यूथ पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कैलेंडर इवेंट्स भी कर रहे हैं, यूथ डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कर रहे हैं। Sir, being one of the qualified minister of Arunachal Pradesh, sir, we want to know regarding the humiliation US has done with the tariff, 50% tariff, sir. And Indian government earlier since long we talk about look east policy. Yes. So we have international borders with China and different countries. So आप सर एज अ मिनिस्टर आप क्या बोलेंगे सर, अरुणाचल में इतनी बड़ी स्कोप है, चाइना जैसे इंडिया का रशिया फ्रेंड है, ये बहुत जैसे ह्यूमिलेशन 50% टैरिफ अगर बढ़ाने से हिंदुस्तान को काफ़ी, इंडिया को काफ़ी नुकसान होता है। तो लुक इस पॉलिसी को लेकर अगर चाइना से हमारे रिलेशन ठीक होते हैं, आप क्या कहेंगे कि बिजनेस के लिए चाइना अरुणाचल? देखिए, चाइनीज अरुणाचल जो रिलेशन को लेकर लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भी हो, हमारा अभी 50% टैरिफ ट्रम्प सरकार जो इंडियन ये में लगा रहा है, और ये जो है इसको हम ये समझता है कि इट इज़ ऑफ कोर्स 50% टैरिफ इन एक्सपोर्ट में लगा रहा है, इंपोर्ट में लगा रहा है, तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए तो हम इंटरनेशनल जो रिलेशन उसको हम आगे अच्छा और करना पड़ेगा। और चाइनीज को बात करें तो मैं तो यही समझता हूँ कि ऑफ कोर्स इकोनॉमी के लिए और फाइट अभी भी चल रहा है इंटरनेशनल लेवल में। अभी हम लोग वार पुटिंग जो करेगा, अभी बाउंड्री रिलेटेड इशू को लेके हम लोग फाइट करते हैं, बट चाइनीज पीपल बिलीव इन इकोनॉमिक वारफेयर। तो इकोनॉमिक वारफेयर को बिलीव करता है, तो उन लोग भी चाइनीज भी ये बिलीव करेंगे कि चाइना से इंडिया से ज़्यादा
मैंने कॉन्फ्रंटिंग करते रहेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा चाइना भी। तो दे कंसिडर आवर इंडिया एज मार्केट, ग्रेट मार्केट फॉर देम। सो इसीलिए उन लोग भी रिलेशन अच्छा रखने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हमारा इंडिया भी देखिए अभी जब कोरोना होने का बाद हुए ड्यूरिंग कोरोना पीरियड ऑल्सो, तो हमारा जब कोरोना वैक्सीन कितना कंट्रीज़ को हम लोग सप्लाई किया गया है। और अभी पाकिस्तान वार का बाद, वार तो नहीं बोलेगा, जस्ट हम लोग जो टेररिस्ट अटैक का बाद हम लोग ब्रह्मोस को वर्ल्ड वाइड अभी डिमांड कर रहा है। डे टू डे हमारा इकोनॉमी भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एज आत्मनिर्भर बनना चाहिए सर, हमें आत्मनिर्भर जैसे कहते हैं, वोकल फॉर लोकल। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ कि हमारा वोकल फॉर लोकल। तो वोकल फॉर लोकल को मद्देनजर रखते हुए हमारा ब्रह्मोस जा रहा है, वो अभी कोई कंट्रीज में अभी डिमांड कर रहा है। हमारा जैसे अरुणाचल में बोला तो हम लोग कोशिश कर रहा है कि हम लोग हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो, तो उसको हम लोग आगे बढ़ावा दे रहा है। और इसमें हम स्टार्टअप में पैसा दे रहे हैं और यूथ्स को। तो आप रिसेंटली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9,500 हमारा अरुणाचल के लिए ये में रखा है उन्नति स्कीम में। तो उसको हम वोकल फॉर लोकल में ही हम बढ़ावा दे रहा है कि हमारा जो भी हो, आप एग्री हो, हॉर्टी हो, फिशिकल्चर हो, जैसे आप पाइनएप्पल, अरुणाचल का पाइनएप्पल स्पेशली जो बागरा पाइनएप्पल बहुत फेमस है। अभी उसको अभी पाइनएप्पल फेस्टिवल होने का वजह से अभी प्रोडक्शंस माने को डिमांड को मीट अप नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज एनकरेजिंग द वोकल। अल्टीमेटली हाइड्रो पावर अरुणाचल में जैसे सियांग को सब ऑब्जेक्शन चल रहा है, आप क्या कहेंगे कि देखिए अरुणाचल कैन कंट्रीब्यूट फॉर लाइक, अगर हाइड्रो पावर में अरुणाचल कंट्रीब्यूट करता है, जैसे अभी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं सियांग नदी पे, सियांग पे मल्टीपर्पज पे, आपका क्या? देखिए मैं तो सियांग डैम को लेके और सियांग मल्टीपर्पज डैम को लेके मैं यही कहूँगा कि उस एरिया का पीपल ऑफ दैट एरिया को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको होने देना चाहिए। कारण ये है कि आपको देखिए उसमें आपको अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 350 करोड़ आपको सैंक्शन कर रहा है। आपको उसमें आपको रिहेबिलिटेट करने के लिए रोड, आपको मॉडल विलेज बना देंगे। और आपको बहुत सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको एज एंड व्हेन दिस मल्टीपर्पज डैम इज कंस्ट्रक्टेड, उसमें नेकलेस रोड बनाने का भी गवर्नमेंट ऐलान किया है। नेकलेस रोड जो है इटली में एक है, और उसी प्रकार आप इटली जैसे अगर डैम आपका बोलेंगे जैसे यिंगकियोंग जगह में आने से वर्ल्ड मैप में आ जाएंगे। अभी डैमेज हुआ उत्तराखंड में, जैसे अभी आप ऐसा हुआ तो अरुणाचल में? देखिए आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि उत्तराखंड तो वहाँ से वहाँ में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो हमारे यहाँ क्लाउड बर्स्ट होने से भी, अर्थक्वेक होने से भी उसको रेसिस्टेंस उसको को टेकिंग ऑल दिस ग्राउंड हम लोग बनाएंगे उसको। इसीलिए ये सब डरावाना हमारा बात तो हम लोग नहीं आना चाहिए, कारण वो तो फुल प्रूफ कंस्ट्रक्शन होगा साइंटिफिकली। आप देखिए हुबरडाम, मैं लास्ट ईयर हुबरडाम भी देख के आए, तो वर्ल्ड हाईएस्ट डैम है। तो उससे बनाया है कि इतना ऊपर डैम है, आज तक अमेरिका का फर्स्ट डैम है वो, हाईएस्ट डैम था और डैम भी है। अभी तक इतना माने सख्त है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ भी अगर सियांग मल्टीपर्पज डैम बनाएंगे तो हम तो ओवर डैम तो कुछ नहीं है, इसको दुनिया वर्ल्ड देखने आएंगे, उसका कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। और हमारा प्रोटेक्शन, हाँ, और आपको मैं तो वो तो ये बोलता है कि वहाँ से चाइना में भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन डेट थिंग को तो वो तो एक स्ट्रेटेजिकली बात है वो, जो मैं तो उसको ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन करेगा उसमें अच्छा कंस्ट्रक्शन करे, एरिया पीपल ऑफ दैट एरिया विल गेट बेनिफिट्स। ऐसे बेनिफिट मिलेंगे कि आज जो कंप्लेन करने वाला
पैसा मिलने का बाद रिहेबिलिटेट करने का बाद ये सोचेंगे हम लोग क्या क्या दिमाग लेके हम लोग ये ऑब्जेक्शन किया था, आज हम लोग ये नौबत ये देखने को मिला है, ऐसे बोलेंगे। मैं ये सब अगर आपके माध्यम से मैं सबको बताऊं कि सुनने वाला भी लिख के रखेगा कि उस समय लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट केंटो जिनी ने ये बोला था और सही निकल गया, ऐसे नए लगने से मेरा नाम नहीं। लास्टी से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, 15 अगस्त आ रही है, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं सियांग बेल्ट मैं में? देखिए हर घर तिरंगा की यात्रा के लिए तो हम लोग सब पहले से जोड़ रहे हैं। हमारे सीएम सर है, डीसीएम सर, लास्ट टाइम हम अंजो में भी करके आया है। मैं भी इस बार 14 को कर रहा हूँ मैं जाके, क्योंकि आई एम लिविंग फॉर आलो ऑन 13 एंड 14 को हम हर घर तिरंगा यात्रा करने जा रहा हूँ टाउन में। एंड देन नेक्स्ट डे हमारा 15 अगस्त होंगे, तिरंगा हम लहराएंगे। तो मैं उसी का मैंने आपके माध्यम से यही कहूँगा कि तिरंगा और ये कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा देश का एक बेसिक चीज़ है, जानना चाहिए कि कैसे रेस्पेक्ट करना है, हाउ टू अवॉइड द लॉ। हम एज ए देशवासी ये तिरंगा को हम रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारा देश का शान है। और कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम लोग फॉलो करना चाहिए। अनलेस यू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी chaos इन द सोसाइटी। ये एक बेसिक है कि हमको जानना जरूरी है। नॉट ओनली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड ऑल्सो अवॉइड बाय द ड्यूटीज़। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में जो बोला है, जो आपको हमारा देशवासियों को भी दिया है कि ये ड्यूटीज़ आपको नहीं होगा। आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को डिमांड करने से नहीं होगा, आपको ड्यूटीज़ को भी फॉलो करना चाहिए।